الترغیب فی الصدقۃ والتعفف عن السؤال۔ خواتین میں سے کوئی پڑھے آج کی حدیث؟ عن حکیم ابن حزام في كتاب الزكاة باب رقم 18 وعند مسلم الترغيب في الصدقة والتعفف عن السؤال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواہ البخاری بهذا اللفظ في كتاب الزكاة باب رقم 18 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى وعند مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود الترغیب فی الصدقۃ والتعفف عن السؤال صدقہ کرنے اور مانگنے سے بچنے کی ترغیب۔ الترغیب فی الصدقۃ صدقہ کرنے کی ترغیب، والتعفف عن السؤال اور سوال کرنے مانگنے سے بچنے کی ترغیب۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو ان سے جن کے تم کفیل ہو، یعنی خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو۔ وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو مانگنے سے اجتناب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا، اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا۔ رواہ البخاری بہذا اللفظ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، کتاب الزکاة میں 18ویں باب میں، جو باب کا عنوان ہے لا صدقۃ الا عن ظہر غنی۔ وعند مسلم فی کتاب الزکاة، اور مسلم میں یہ حدیث کتاب الزکاة میں ہے، باب بیان ان الید العلیا خیر من الید السفلی، اس باب میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور وہ ان الفاظ میں ہے افضل الصدقۃ او خیر الصدقۃ، افضل صدقہ یا بہتر صدقہ۔
अफजल सदका या बेहतर सदका अन ज़हरी गिनन वो है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हो। वल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफला और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। वब्दा बिमन ताउन और उनसे खर्च करने की इब्तिदा करो जिनकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो। हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और खर्च करने की इब्तिदा उनसे करो जिनकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो, और बेहतरीन सदका वो है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हो, और जो सवाल करने से बचेगा अल्लाह ताला उसे महफूज रखेगा, और जो बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देगा। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस लफ्ज़ के साथ किताब ज़का में 18वें बाब में रिवायत किया, और मुस्लिम में ये हदीस किताब ज़का में है इस बाब में कि अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफला, और इन अल्फाज में है अफजल सदका या बेहतरीन सदका वो है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हो, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और खर्च करने की इब्तिदा उनसे करो जिनकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो। शरहुल मुफरदात, शरहुल मुफरदात अल्फाज की शरह। अल कलिमा व शरहुहा। अल यदुल उलिया अल यदुल मुनफिका। अल यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ, उसका माना है अल यदुल मुनफिका खर्च करने वाला हाथ। अल यदुल मुनफिकतु खर्च करने वाला हाथ। अल यदुस सुफला अस्साइला मांगने वाला हाथ। अल यदुस सुफला नीचे वाला हाथ, उससे मुराद है अस्साइला मांगने वाला, यानी अल यदुस साइला मांगने वाला हाथ। मन ताउद मन तल्ज़मुका नफ़क़ातुहुम जिनका नफ़क़ा तुम पर लाजिम है। मन तल्ज़मुका नफ़क़ातुहुम जिनका नफ़क़ा तुम पर लाजिम है। अन ज़हरी गिनन मिन गैरि हाजतिन वाजिबतिन इला मा यतसद्दक़ु बिही बग़ैर किसी वाजिब ज़रूरत के जो तुम सदका कर रहे हो। अन ज़हरी गिनन जो अपनी ज़रूरियात से बढ़कर हो, ज़रूरियात पूरी करने के बाद हो, उसका मफ़हूम ये है कि मिन गैरि हाजतिन वाजिबतिन किसी वाजिब ज़रूरत के बग़ैर, इला मा यतसद्दक़ु बिही उस चीज़ में जिसको तुम सदका कर रहे हो, यानी जिस चीज़ को तुम सदका कर रहे हो उसकी कोई वाजिब ज़रूरत तुम्हें ना हो, उसकी कोई वाजिब ज़रूरत तुम्हें ना हो। मिन गैरि हाजतिन वाजिबतिन किसी वाजिब हाजत के बगैर, इला मा यतसद्दक़ु बिही जिसको तुम सदका कर रहे हो, जो तुम सदका कर रहे हो उसको उसकी किसी वाजिब हाजत के बगैर। मतलब ये कि जिस चीज़ को तुम सदका कर रहे हो उसकी कोई वाजिब हाजत तुम्हें नहीं है, तुम्हें उसकी कोई ऐसी हाजत नहीं है जो कि वाजिब हो, यानी अपना नफ़क़ा या अपने अहल वयाल का, अपने वालिदैन का नफ़क़ा तुम पर नहीं है। जो तुम सदका कर रहे हो वो वाजिब हाजत के अलावा है, वाजिब हाजत से बढ़कर है। यस्ताफिफ यतलुबुल इफ़्फ़त अनिस सवाल वल इफ़्फ़तु इज़हारुल गिना। यतलुबुल इफ़्फ़त अनिस सवाल जो मांगने से बचना, जो मांगने से बचता है। यतलुबुल इफ़्फ़ता इफ़्फ़त तलब करता है, अनिस सवाल मांगने से, यानी मांगने से बचता है। वल इफ़्फ़तु इज़हारुल गिना और इफ़्फ़त कहते हैं बेनियाजी जाहिर करने को। वल इफ़्फ़तु इज़हारुल गिना और इफ़्फ़त बेनियाजी जाहिर करना। यस्तगनी यतरफ़अु अन मसअलतिन नास इज्तनाब करता है लोगों से मांगने से, लोगों से मांगने से बचता है, इज्तनाब करता है। वयुशइरु नफ्सहु बिलगिना वयशउरु नफ्सहु बिलगिना और बेनियाजी महसूस करता है अन गैरि खालिक़िही सुब्हानहु व तआला अपने खालिक सुब्हानहु व तआला के अलावा से, यानी अल्लाह तबारक तआला के अलावा सबसे अपने आप को बेनियाज महसूस करता है। वयशउरु नफ्सहु और अपने आप को महसूस करता है बिलगिना बेनियाज अन गैरि खालिक़ी सुब्हाना अल्लाह ताला के अलावा सबसे, अल्लाह ताला के अलावा सबसे वो अपने आप को
بے نیاز محسوس کرتا ہے. وہ یشعر محسوس کرتا ہے، شعر یشعر سے. الترغیب فی الصدقۃ والتعفف عن السؤال، صدقہ کرنے اور مانگنے سے اجتناب کرنے کی ترغیب، یہ عنوان ہے اس حدیث کا یا اس سبق کا جو آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. حدیث کے راوی کے بارے میں پہلے ہم گفتگو کر لیں. حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام ابن خویلد رضی اللہ عنہ عام الفیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے. عام الفیل کے 13 سال پہلے پیدا ہوئے تھے حکیم ابن حزام. مکے میں پیدا ہوئے، اور صحیح روایات سے یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کی یہ واحد شخصیت ہیں جو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. ان کی والدہ اس موقع پر کعبۃ اللہ میں تھیں. اتفاق سے ان کو درد محسوس ہوا تو لوگ ان کو اٹھا کر وہاں لے گئے، یا پھر کسی وجہ سے کعبۃ اللہ کھلا تھا جس کی وجہ سے وہ اندر گئیں. بہرحال صحیح روایت سے بات معلوم ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے. ایسی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے. البتہ یہ ثابت ہے، حکیم ابن حزام کا کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ ثابت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی تھی. امہات المومنین میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی تھیں، اور یہ حضرت خدیجہ کو بہت چاہتے تھے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکیم ابن حزام ہی نے عکاظ کے بازار میں خریدا تھا، اور پھر اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر دیا تھا. اور انہوں نے شادی کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حکیم ابن حزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور بہت قریب تھے. مکے میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بنو ہاشم اور ان کے قریبی لوگ ابو طالب کی گھاٹی میں جب محصور ہو گئے تھے، اور قریش والوں نے ان سے خریدنا، بیچنا اور کوئی تعلق، تمام چیزیں توڑ دی تھیں، ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا تھا، اور فاقے کی وجہ سے بنو ہاشم کافی پریشان ہو گئے تھے. تو یہ اپنی پھوپھی کو غلہ پہنچایا کرتے تھے چھپے طور پر. ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا، بہت تکرار ہوئی، لیکن پھر بھی وہ غلہ پہنچا کر ہی رہے. حکیم ابن حزام اپنے قوم کے اشراف میں سے تھے، اور عقل سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بہت بلند درجے پر تھے. لیکن اس کے باوجود بھی عجیب بات یہ ہے کہ اتنی اہم اور عقل مندی کے اعتبار سے اتنے عظیم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا. ان کا اسلام فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا. بدر میں اور احد میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. یہی وجہ تھی کہ اسلام لانے کے بعد وہ قسم کھاتے تو کہتے تھے کہ لا والذی نجانی ببدر، قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بدر کے موقع پر نجات دی تھی، یعنی قتل سے بچا لیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے. اس کے بعد حنین اور طائف کی جنگوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے. حنین اور طائف کی جنگوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. 54 ہجری میں یعنی 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال جاہلیت کے زمانے کے اور 60 سال اسلام کے زمانے کے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو نیک کام کیے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو آپ نے بتایا کہ جو نیک کام تم نے کیے ہیں وہ تمہارے اسی طرح باقی رہیں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جتنے بھی نیک کام جاہلیت میں کیے وہ کام میں اسلام میں بھی کروں گا. لہٰذا انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے. اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے 100 غلام آزاد کیے، اور 100 اونٹ پورے سامان کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا تھا. تو اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے 100 اونٹ پورے سامان کے ساتھ خرچ کر دیا. ان سے 40 احادیث مروی ہیں.
40 अहादीस मरवी हैं जिनमें 4 मुत्तफ़क़ अलैह हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। 4 40 हदीसें हैं पूरी, मुकम्मल 40 हैं, जिसमें से 4 मुत्तफ़क़ अलैह हैं, बाकी हदीस की दीगर किताबों में। अब आई हदीस की शरह की तरफ। हकीम इब्न हिज़ाम रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाले हाथ से मुराद क्या है? इसकी तशरीह एक दूसरी हदीस में, यानी सही बुखारी सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अल यदुल उलिया हियल मुनफिका, कि ऊपर वाला हाथ वो है जो कि खर्च करता है, और फिर असुफला हिय साइला, कि नीचे वाला हाथ वो है जो कि मांगता है, सवाल करता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी खर्च करने वाला उससे अफजल है जो कि सवाल करता है या मांगता है या फिर उसको तलब करता है। यकीनन बेहतर है, क्योंकि अल यदुल उलिया जो ताबीर है ये खुद इस बात की दलील है, ये ताबीर खुद ये बताती है कि वो बेहतर है क्योंकि वो ऊपर होता है और ये नीचे होता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है इसलिए कि ये देता है और वो लेता है, ये खर्च करता है और ये उससे फ़ायदा उठाता है, ये फ़ायदा पहुंचाता है और वो फ़ायदा उठाता है। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, इसमें तरगीब है सदका और खैरात करने की, क्योंकि जब बेहतर है तो फिर इंसान को चाहिए कि वो शख्स बने जो बेहतर कहलाता है, माशरे में बेहतर कहलाता है, यानी सदका और खैरात करता है। और कुरान में अहादीस में सदका और खैरात करने की बहुत तरगीब दी गई है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यंज़िलान। सही हदीस है कि हर दिन 2 फरिश्ते उतरते हैं जब सुबह होती है। फ़यक़ूल वहदुहुमा अल्लाहुम्मा आती मुनफ़िक़न खलफ़ा, उनमें से एक कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक तआला खर्च करने वाले को उसके बदले मज़ीद अता फरमा। व यक़ूलुल आखर अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफ़ा, और दूसरा कहता है कि रोकने वाले को, बख़ालत करने वाले को नुकसान अता फरमा। तो ऊपर वाला हाथ या देने वाले हाथ से देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से यकीनन बेहतर है, क्योंकि वो बेइंतहा अजर व सवाब कमाता है जबकि ये उससे महरूम रहता है। इसमें इस बात की तरगीब दी गई है कि इंसान माशरे में एक ऐसा अंसुर बने जो कि फ़ायदा पहुंचाता है। इस सिलसिले में एक वाक़या बयान किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो मस्जिद नबवी में रहता है, बाहर नहीं निकलता, इबादत में मशगूल रहता है। आपने उससे पूछा कि तुम पर खर्च कौन करता है? तो उसने बताया कि मेरा भाई खर्च करता है। तो आपने कहा अखूक आबदु मिन्क या अफदलु मिन्क, कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा इबादत गुजार है या तुमसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन ये हदीस साबित नहीं है, यानी अगरचे कि ये वाक़या बयान किया जाता है, लेकिन किसी भी उम्महातुल कुतुब में से, हदीस की बुनियादी किताबों में से किसी किताब में ये मज़कूर नहीं, यानी बेसनद बात है। लिहाजा इस तरह का वाक़या बयान करना ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बात यकीनन दुरुस्त है कि इंसान का इबादत में मशगूल रहने के बजाय इबादत से फारिग होने के बाद वो मेहनत करे, मशक्क़त करे, कमाए, अपने आप पर खर्च करे, अपने अहल-वयाल पर खर्च करे, मुआशरे पर खर्च करे, ये उसके लिए यकीनन अफ़ज़ल है। जुमा के दिन नमाज में हाजिर होने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह तबारक तआला का फ़ज़ल तलाश करो। तो बहरहाल इंसान को अपने माल में खर्च करने का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसके बदले उसे मज़ीद अता करेगा और उसके पास जो सवाब जमा होगा वो इसके अलावा है। वब्दा बिमन ताउल, और खर्च करने की इब्तिदा उससे करो जिसकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो। ये उसूल बताया गया आदमी के खर्च करने के बारे में। इसकी तशरीह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की जाती है कि उनसे पूछा गया कि इसका मफ़हूम क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बीवी पर खर्च करो जो तुमसे कहेगी कि या तुम मुझ पर खर्च करो या मुझे छोड़ दो, या फिर अपने खादिम पर खर्च करो जो तुमसे कहेगा कि पहले मुझे खाना खिलाओ उसके बाद मुझसे काम लो, या अपनी औलाद पर खर्च करो जो तुमसे कहेगी कि तुम हमें किन के भरोसे पर छोड़ रहे हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जिनकी किफ़ालत का जिम्मेदार है उन पर पहले खर्च करे, उनसे अपने खर्च का आगाज़ करे, ये उसके लिए बहुत ही अहम है। एक हदीस में आता है कि अब इब्दा बिनफ्सिका सुम्मा बिमन ताउल, कि तुम अपने नफ्स से शुरू करो, पहले अपने नफ्स पर खर्च करो, फिर उस पर जिनकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो। मुस्नद अहमद की एक हदीस में आता है कि एक शख्स ने कहा कि मेरे पास एक दीनार है, तो आपने कहा तसद्दक़ अला नफ्सिक, अपने आप पर उसे खर्च करो। उसने कहा कि एक और दीनार है, तो आपने कहा तसद्दक़ अला वलदिक, अपनी औलाद पर खर्च करो। उसने कहा कि एक और दीनार है, तो आपने कहा तसद्दक़ अला ज़ौजिक, अपनी बीवी पर खर्च करो। उसने कहा कि एक और दीनार है, तो आपने कहा अला खादिमिक, अपने खादिम पर खर्च करो। उसने कहा कि एक और दीनार है, तो आपने कहा अंत अबसर, कि तुम बेहतर तौर पर उसमें तसरुफ करने का इख्तियार रखते हो, यानी बेहतर तौर पर समझ सकते हो कि फिर वो कहाँ खर्च करे। तो आपने एक तरतीब बताई जिससे मालूम होता है कि इंसान जिनकी किफ़ालत का जिम्मेदार है उन पर खर्च करना, पहले खर्च करना, ये उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह नसाई की एक हदीस में आता है, और इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया कि वब्दा बिमन ताउल, के आगाज उससे करो जिनकी किफ़ालत के तुम जिम्मेदार हो, उम्मुका व अबाका, तुम्हारी वालिदा और तुम्हारे वालिद, व उख्तुका व अखाका, और तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई, सुम्मा अदना का, फिर वो जो तुमसे करीब हों और वो जो तुमसे करीब हों। इन हदीस की रोशनी में ये बात मालूम होती है कि इंसान किन लोगों की किफ़ालत का जिम्मेदार है। तो मालूम हुआ कि आदमी अपने वालिदैन की किफ़ालत का जिम्मेदार है अगर वो मोहताज है, अपनी औलाद की किफ़ालत का जिम्मेदार है, अपनी बीवी की किफ़ालत का जिम्मेदार है, और अपने भाई बहन अगर वो मोहताज हैं तो उनकी किफ़ालत का वो जिम्मेदार है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि खर्च करने में सबसे पहले उनको तरजीह दे दूसरे लोगों के मुकाबले में, क्योंकि दूसरे लोगों पर खर्च करना उस पर मुस्तहब है और उन पर खर्च करना जिनकी किफ़ालत का जिम्मेदार है उस पर वाजिब है। और यकीनन वाजिब मुस्तहब के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है, वाजिब मुस्तहब के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि सबसे पहले जिनके खर्च का वो जिम्मेदार है उनके वाजिबी चीज़ों पर खर्च करे जो ज़रूरी हैं, उनके खाने, पानी, कपड़े, इलाज वगैरह, और में उस तरह खर्च करे जो उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरों पर खर्च करे। माशरे में बाद लोग बहुत से खैर के काम अंजाम देते हैं, मसाजिद की तामीर करते हैं, सदक़े जारिया के बहुत से काम करते हैं, फलां फलां काम करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों पर वो खर्च नहीं करते, रिश्तेदारों पर वो खर्च नहीं करते, और ये इस हदीस के खिलाफ है। और फिर वो दूसरी बहुत सी हदीस के खिलाफ है जिसमें ये बात बयान की गई कि मिस्कीन पर खर्च करना एक सवाब मिलता है और अपने रिश्तेदार पर खर्च करने से दो सवाब मिलते हैं, एक सदक़े का भी और दूसरा रिश्ते को निभाने का भी, निभाने का भी। तो इस हदीस में जो उसूल बयान किया गया वो ये कि आदमी सबसे पहले वो खर्च को तरजीह दे जो उस पर वाजिब है, उसके बाद जो मुस्तहब है उसकी तरफ तरजीह दे, उसकी तरफ तवज्जो दे। फिर फरमाया वो खैरु सदक़ती अन ज़हरी गिनन, और बेहतरीन सदका वो है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हो। अन ज़हरी गिनन का मतलब ये नहीं कि वो जो मालदारी की सूरत में की जाए, यानी इंसान मालदार हो तो खर्च करे, ये उसका मफ़हूम नहीं है, वो इसका मफ़हूम नहीं है, बल्कि सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तक़ीन की सिफत बयान करते हुए फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, वो लोग ऐसे हैं जो कि आसानी में भी खर्च करते हैं और तंगी में भी खर्च करते हैं, यानी जैसी भी उनकी हालत हो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो खर्च करते हैं। तो आदमी की हालत चाहे खुशहाली की हो या फिर बदहाली की, लेकिन आदमी जितनी इस्तिताअत रखता है उतना वो खर्च करे, ये उससे मतलूब है। तो इसका जो मफहूम है वो ये कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो बचता है वो खर्च करे, यानी अपनी ज़रूरियात, अपनी और अपने घर वालों की जिनकी किफ़ायत को जिम्मेदार है, उनकी जो वाजिब ज़रूरियात पूरी होती हैं तो उनके बाद जो बचता है वो खर्च करे। इस हदीस के इस टुकड़े से, इस हिस्से से दो बातें मालूम होती हैं। एक ये कि आदमी पहले अपने और अपने घर वालों की ज़रूरियात पर खर्च करे, ये वाजिब है। और उसके बाद दूसरी जो बात मालूम होती है कि इन ज़रूरियात के वाजिब पूरे करने के बाद जो बच जाता है उसमें फिर बुखल से काम न ले, उसमें बुखल से काम न ले कि उसे रोक दे, बल्कि वो खर्च करे, वो अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में जितना
कर सकता है उतना वो खर्च करे, ये उसके लिए अफजल है और ये उसके लिए बेहतर है। उसके बाद चौथी बात ये हदीस में बयान की गई, वमन यस्ताफिफ यउफ़हुल्लाह, और जो सवाल करने से बचेगा अल्लाह ताला उसे बचाएगा। वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह, और जो बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देगा। ये अहम बात बताई गई कि इंसान जब अपने अंदर मोहताजी का तसव्वुर पैदा करता है और अपने आप को आजिज कर लेता है तो फिर वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अगर वो बेनियाजी इख्तियार करता है और मेहनत व मशक्क़त का तरीक़ा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके लिए मेहनत व मशक्क़त करना आसान कर देता है। तो इस हदीस में उभारा गया है इस बात की तरफ कि आदमी मेहनत करे, मशक्क़त करे और कोशिश करे और किसी भी हाल में वो मोहताज न बने। तो इस्लाम लोगों को खुददारी पर उभारता है, इज्जत नफ्स पर उभारता है और मेहनत व मशक्क़त पर उभारता है, मेहनत व मशक्क़त पर उभारता है। सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। हम 9 या 8 या 7 अफराद थे। आपने पूछा कि क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैअत नहीं करोगे? और हमने करीब ही में बैअत की थी। हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो बैअत कर चुके हैं। आपने फिर पूछा कि क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैअत नहीं करोगे? तो हमने अपने हाथ फैला दिए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि हम किस चीज़ पर बैअत करें। तो आपने फरमाया अला अन ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वस्सलवातिल खम्स व तुतीउ व असर्र कलिमतन खफियतन वला तसअलुन नास शैआ। सही मुस्लिम की हदीस है। इस बात पर बैअत करो कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ोगे और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे। फिर आपने आहिस्ता से एक कलीमा कहा और वो कलीमा क्या था कि किसी से कुछ नहीं मांगोगे, किसी से कुछ नहीं मांगोगे। इस हदीस से बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा से इस बात की बैअत ली कि वो किसी से नहीं मांगेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद थे उनमें से बाद लोगों को मैंने देखा कि वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि उनका कोड़ा भी अगर गिर जाता, घोड़े पर वो सवार होते तो किसी से नहीं कहते कि वो कोड़ा उन्हें उठा कर दे, बल्कि वो खुद उस कोड़े को उतर कर लेते थे। इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस है, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तकफ़्फ़ल ली अल्ला यसअलन नास शैअन व अतकफ़्फ़लु लहू बिल जन्नह, जो मुझे इस बात की ज़मानत देगा कि वो लोगों से कुछ नहीं मांगेगा तो मैं उसको इस बात की ज़मानत देता हूँ कि वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी मैं उसको जन्नत में दाखिल होने की ज़मानत देता हूँ। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके मेहनत व मशक्क़त करे। हाँ, अगर कोई आदमी मोहताज है, उसके बगैर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, या ये कि फिर जिनके खर्च का वो ज़िम्मेदार है उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो उस मौके पर कोई हर्ज नहीं कि आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांग सकता है और उतना ले सकता है। इस बाब में ये हदीस बहुत अहमियत रखती है जो हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हकीम इब्न हिज़ाम जो इस हदीस के रावी हैं, वही एक और हदीस रिवायत करते हैं जो सही मुस्लिम में है। सही मुस्लिम में है, हकीम इब्न हिज़ाम कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा तो आपने मुझे दिया, मैंने फिर मांगा उन्होंने फिर दिया, मैंने फिर मांगा तो उन्होंने फिर दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हकीम इन्न हाज़ल माल खादिरुन हुल्वुन, ऐ हकीम ये माल सरसब्ज़ शादाब है, देखने में अच्छा लगता है। हुल्वुन शीरी है, लज्जत महसूस होती है। फमन अखज़हु बिसखावति नफ्सिन बूरिक फीह, जो इसे ज़रूरत के मुताबिक लेता है तो उसमें उसे बरकत दी जाती है। वमन अखज़हु बिइशराफ़ि नफ्सिन, जो नफ्स के लालच से लेता है, लम युबारक लहू फीह, तो उसे उसमें बरकत नहीं दी जाती। वकाना कल्लज़ी याकुल वला यशबा, और वो उस शख्स के मानिंद हो जाता है जो खाता है लेकिन पेट नहीं भरता, उसका सैराब नहीं होते, सैर नहीं होता। वल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदिस सुफला, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हकीम इब्न हिज़ाम कहते हैं कि मैंने ये सुनकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, इसके बाद मैं अपनी वफ़ात तक भी कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। उसके बाद हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा बने और मुसलमानों में माल तकसीम होने लगा तो उन्होंने हकीम इब्न हिज़ाम को भी बुलाया, तो उन्होंने कोई माल कबूल नहीं किया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने
تو उन्होंने उनका हिस्सा देने के लिए उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि लोगों इस बात को गवाह रहो कि माल फ़ै में जो हिस्सा हकीम इब्न हिज़ाम का बनता है मैं उसे देना चाहता हूँ, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे हैं। बहरहाल हकीम इब्न हिज़ाम ने अपनी वफ़ात तक किसी से कोई चीज़ नहीं ली और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इससे मालूम होता है कि किस तरह वो अपने अहद व पैमान को पूरे किया करते थे और उसका ख्याल रखते थे। तो बहरहाल जिस उम्मत में इस तरह की तालीमात हैं, अफसोस की बात यह है कि उम्मत का एक तबका आज मांगने को एक फ़न बना चुका है और ऐसे ऐसे तरीके से सवाल करता है कि देने वाले मजबूर हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। जिस इस्लाम में हमारे पास ये तालीमात हैं कि इस कदर उभारा गया मेहनत पर, मशक्क़त पर और मजम्मत की गई मांगने की, उसके बावजूद भी अगर मांगने का सिलसिला ख़त्म ना हो तो यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सअल अन्नास तकस्सुरन यसअलु जमरन फलयस्तकिल औ लियस्तक्सिर। जो लोगों से माल में कसरत करने के लिए मांगता है, अपने माल में इजाफे के लिए, जरूरत के तहत मांगता है तो उसका जवाज है जरूरत की हद तक, लेकिन उसका मकसद ये है कि अपनी जो बुनियादी जरूरियात है उससे ज्यादा जो जरूरियात है वो पूरी करे, उससे ज्यादा माल को जमा कर ले, तो वो गोया आग का टुकड़ा मांगता है। जो माल में इजाफे के लिए मांगता है वो आग का टुकड़ा मांगता है। अब चाहे वो कमी करे चाहे ज्यादती करे, जितने ज्यादा वो मांगेगा उतना ज्यादा आग के अंगारे वो अपने पास जमा करेगा। सही मुस्लिम की हदीस के जो अल्फाज हैं, सही मुस्लिम की हदीस के जो अल्फाज हैं वो भी बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के मानी में, इसलिए उनकी अलग से शरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे अल्फाज की शरह, वो सारे जुमलों की शरह गुजर चुकी है, सारे जुमलों की शरह गुजर चुकी है। यानी अफजल सदका या बेहतर सदका, अफजल सदकती औ खैर सदकती औ ज़हरी गिनन, इसका मफहूम हम बयान कर चुके हैं। वल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफला, ये भी बयान कर चुके। वब्दा बिमन ताउल, इसकी शरह भी गुजर चुकी है। तो ठीक है, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। कभी भी एक मुसलमान को अपना माल ज़ाय करना जायज़ नहीं है। किसी के बारे में मालूम है हमें अच्छी तरह, किसी साइल के बारे में हमें मालूम है कि वो अपनी ज़रूरत के तहत नहीं मांग रहा है, बल्कि उसको पेशा बना चुका है, उसको पेशा बना चुका है और वो उसके उस तरह माल को सिर्फ बगैर जायज़ ज़रूरत के कमा रहा है, तो उसको माल देना जायज़ ही नहीं है। यानी ये नहीं कि उसको नहीं देंगे तो गुनाह होगा, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम माशरे में उन लोगों की हिम्मत अफजाई करेंगे, अगर हम उनको देते हैं तो उनकी अफजाई करेंगे जो उसको अपना पेशा बना चुके हैं। इस तरह माशरे को कमज़ोर कर रहे हैं और फिर इस तरह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। उस अगर हमें मालूम है तो उनको नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला का वास्ता देकर मांगना, ये बात, जो अल्लाह तबारक ताला का नाम लेकर या वास्ता देकर मांगता है उसे महरूम नहीं करना चाहिए, ये बात सही हदीस से साबित है। लेकिन बशर्ते कि वो हक के साथ मांगे, लेकिन जो नाहक मांगता है वो किसी भी जरिए से मांगे, वो उसका मुस्तहिक नहीं होता और उसको न देने वाले पर कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो मांगने वाला मुस्तहिक नहीं है, मांगने वाला उसका मुस्तहिक नहीं है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उससे इनकार कर देती है। अगर मालूम है कि वो महज पेशे के तौर पर मांग रहा है, उसको इनकार करते हैं चाहे वो कैसी भी अल्फाज कहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो हकीकत में मोहताज है, मिस्कीन है, परेशान हाल है, खास तौर पर खानदान में और अपनी पहचान वालों में, उनको तलाश कर उनको देना चाहिए। उसके बाद फिर वो मिस्कीन नहीं है, वो यानी मतलब है कि वो मोहताज नहीं है, कि उसके उनके मुकाबले में अगर कोई दूसरे मोहताज हैं जो उनसे बढ़कर मोहताज हैं, हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो खाते पीते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, फिर भी वो मांगते हैं,
तो फिर वो मुस्तहिक तो नहीं है, तो उनके मुकाबले में उन लोगों को तरजीह देना चाहिए जो उनसे दूर दूर है, यानी रिश्ते में उनसे दूरी पर आते हैं, या फिर वो जो कि रिश्तेदार नहीं है लेकिन मोहताजी में उनसे बढ़कर है। तो बहरहाल खर्च का असल ताल्लुक मोहताजी से है, खर्च का असल ताल्लुक मोहताजी से है, सदक़े का असल ताल्लुक मोहताजी से है, तो उसको तरजीह देंगे जो कि मोहताज है। अगर रिश्तेदारों में मोहताज है तो उस पर खर्च करेंगे, उस पहले दर्जे में उसको तरजीह देंगे। अगर रिश्तेदारों में मोहताज नहीं है, कोई दूर का आदमी मोहताज है तो उसे देंगे। लेकिन हदिये और तोहफे वगैरह का ताल्लुक मोहताजी से नहीं है। आदमी रिश्तों को जोड़ने के लिए हदिया दे सकता है, तोहफा दे सकता है, अगरचे कि जिनको हम दे रहे हैं वो कितना ही बड़ा मालदार क्यों ना हो, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसे तोहफा और हदिया दे सकते हैं। जी हाँ, ज़कात के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसूल ये है कि जिनका जिनका इन्फाक आदमी के ज़िम्मे है, उनको वो ज़कात का माल नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह वो अपने अपने माल को बचाता है। उन पर इन्फाक करने के बजाय उनको ज़कात देते हुए गोया अपने माल को बचा लेता है, तो गोया उसका माल खुद उसी की तरफ लौट कर आ जाता है। तो ज़कात के बारे में उसूल ये है कि आदमी जिनके इन्फाक का ज़िम्मेदार है, जिनका नफ़क़ा उसके ज़िम्मे है, उनको वो नहीं देगा। जैसे कि वालिदैन हैं, या फिर औलाद है, बीवी है, और फिर भाई-बहन है अगर वो उसकी किफ़ालत में है तो। बहनों ही उनमें से नहीं है जिनकी किफ़ायत को ज़िम्मेदार है, तो वो बदर औलाद दे सकता है, कोई बात नहीं, अगर वो मोहताज है तो उनको दे सकता है। मोहताजी शर्त है ज़कात के लिए। मेहनत व मशक्क़त का मतलब ये है कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत व मशक्क़त करे, लेकिन बगैर मेहनत व मशक्क़त के लिए उसकी ज़रूरियात पूरी होने का इंतज़ाम हो रहा है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, वो खुददारी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसने तो पहले से इंतज़ाम किया हुआ है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो सके। अब अपने बचे हुए वक्त वो अल्लाह तबारक तआला की इबादत में लगाए, वो उसके लिए ज़्यादा अफजल है, बजाय इसके कि मेहनत व मशक्क़त करे। अब जबकि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, अपने बचे हुए वक्त को वो अल्लाह तबारक तआला की इबादत में, उसके दीन की खिदमत में सर्फ करे, वो उसके लिए अफजल है। उसके लिए अब कमाने के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इंतज़ाम वो कर चुका है। अहमुल फ़वाइद जी। देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने सूरत निसा में फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरत पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, और इस वजह से वो अपने माल को खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने मर्द की कव्वामियत के दो असबाब बयान किए। एक तो ये कि फजीलत अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है देता है, दूसरी वजह ये बयान की कि वो अपना खर्च करते हैं। तो इन्फाक का जिम्मेदार मर्द है। औरत अगर कमाती भी है तो वो मर्द पर इन्फाक की जिम्मेदार नहीं होती। औरत कमाती भी है तो वो मर्द के इन्फाक की जिम्मेदार नहीं होती। तो ये बहुत ही गैर अखलाकी बात है कि मर्द किसी भी बहाने से हो घर में बैठा रहे और औरत को मेहनत व मशक्क़त पर लगा दे, जबकि वो उसका काम है। औरत अगर कमाए भी तो उस पर खर्च करने की वो जिम्मेदार नहीं है। ये एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि आदमी का ये बहाना कि औरतों को आसानी से काम मिल जाता है और मर्दों को मुश्किल होती है, तो इसलिए वो घर पर बैठा रहे, ये बहाना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए कि जब मर्द घर पर बैठे रहेंगे तो यकीनन औरतों को काम मिलेगा। जब औरतें घर पर रहेंगी, जब नहीं जाएंगी काम पर, तो ज़ाहिर है कि मर्द निकलेंगे तो लोग मर्द को लिया करेंगे। यानी माशरे में एक गलत रिवाज जो चल पड़ा है
उसका ताउन होगा, ये उसका ताउन होगा कि इस तरह मर्द घर पर बैठे रहेंगे और औरतें मेहनत और मशक्कत करेंगी, जबकि वो उस जिम्मेदारी के वो नहीं है, उस जिम्मेदारी की वो नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि मर्द खर्च ना करे तो क्या औरत तलाक का मुतालबा कर सकती है? तो हाँ, ये तलाक के मुतालबे के जायज़ असबाब में से एक सबब ये भी है कि इन्फाक जो मर्द की जिम्मेदारी है अगर वो नहीं करता तो फिर औरत को ये जायज़ है कि वो तलाक का मुतालबा करे। यानी मर्द अगर औरत पर इंसाफ ना करे तो तलाक का मुतालबा करने में औरत जो है गलती पर नहीं होगी, वो कर सकती है। यानी दूसरे असबाब का वो जायज़ा ले, ये नहीं कह सकते कि हम कि जो है वो तलाक का मुतालबा करें, लेकिन ये असबाब में से एक सबब है। असबाब में एक सबब है कि उस सूरत में औरत गुनहगार नहीं होगी, उस सूरत में औरत गुनहगार नहीं होगी, वो तलाक का मुतालबा इस सूरत में कर सकती है अगर मर्द उस पर खर्च न करे। बुनियादी तौर पर वो बातें हैं जो आज हमारे दर्स में गुजरी, और फिर सूरत निसा की वायत है जो हमारे सामने आई कि मर्द की कवामियत का बुनियादी सबब यही है कि वो खर्च करते हैं। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस बात का जिक्र किया जो सही हदीस है, कफ़ा बिलमर्इ इस्मन अन युदय्यिअ मन यक़ूत। आदमी के गुनहगार होने के लिए यही बात काफ़ी है कि जिनकी रोज़ी रोटी का वो ज़िम्मेदार है, जिनके इन्फाक का वो ज़िम्मेदार है, उनको ज़ाये कर दे। यानी इतना न कमाए या ऐसा न कमाए कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। आदमी जिनकी किफ़ालत का ज़िम्मेदार है, अगर उनकी किफ़ालत का इंतज़ाम नहीं करता तो यही बात उसके गुनहगार होने के लिए काफ़ी है। अहमुल फ़वाइद की तरफ आइए। अव्वलन अत्तअफ़्फ़ुफ़ु अनिल मसअलति वत्तरफ़्फ़ुअ अन्हा। सवाल से, मांगने से बचना और उससे इज्तिनाब करना। अत्तअफ़्फ़ुफ़ु अनिल मसअलति वत्तरफ़्फ़ुअ अन्हा, मांगने से बचना और सवाल करने से इज्तिनाब करना। सानियन अल यदुल मुनफ़िक़तु अफ़दलु मिनल आख़िज़ति। खर्च करने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। खर्च करने वाला हाथ अफजल है लेने वाले हाथ से। सालिसन इन्नल अक़रबीना औला बिल मारूफ। ये क़राबतदार भलाई के ज़्यादा मुस्तहिक़ है। इन्नल अक़रबीना, क़राबतदार, औला ज़्यादा मुस्तहिक़ है, बिल मारूफ, भलाई के, इंसान की भलाई के ज़्यादा मुस्तहिक़ उसके क़राबतदार है। राबिअन मिन सिफ़ातिल मुस्लिमी अल क़नाअह। मुसलमान की सिफ़ात में से क़नाअत है। क़नाअत का मतलब ये है कि इंसान के नसीब में जो रिज़्क़ है उस पर वो किफ़ायत करे, उस पर वो किफ़ायत करे, गलत और नाजायज़ तरीक़े से रोज़ी हासिल करने की कोशिश न करे। मिन सिफ़ातिल मुस्लिमी अल क़नाअह, मुसलमान की सिफ़ात में से क़नाअत है। लिअन्नल ग़िना ग़िनन नफ्स, इसलिए कि मालदारी नफ्स की मालदारी है। सिफ़ातुल मुस्लिमी अल क़नाअह, मुसलमान की सिफ़ात में से क़नाअत है। लिअन्नल ग़िना ग़िनन नफ्स, इसलिए कि मालदारी नफ्स की मालदारी है। बेनियाज़ी, दोनों भी है, क्योंकि जो मालदार है वो बेनियाज़ है, जो बेनियाज़ है वो मालदारी का मुज़ाहरा करता है। क़नाअत के है कि अल्लाह तबारक व तआला यानी मुक़द्दर में उसके जो रिज़्क़ है उस पर वो किफ़ायत करे, उस पर वो किफ़ायत करे, मांगने से या फिर हराम ज़राए इख्तियार करने से गुरेज़ करे। क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता। सही मुस्लिम की हदीस है कि वो शख्स कामयाब हो गया जो मुसलमान हुआ और उतना रिज़्क़ दिया गया जो उसके लिए काफ़ी हो जाए, और जो कुछ उसे दिया गया है उस पर अल्लाह ताला ने उसे क़नाअत अता की। यानी इस्लाम लाया और गुज़ारे का जो रिज़्क़ है वो उसे हासिल हुआ और उसे क़नाअत हासिल हुई, तो वो आदमी कामयाब हो गया। यहाँ हम रुकेंगे।